کورٹ میں کورونا خود نوٹس کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل کی عدالت سے ریمارکس اور فیصلے دیتے ہوئے معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھنے کی استدعا۔ کہا عدالت کے کل کے حکم سے لوگ سمجھ رہے ہیں کورونا سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت کے حکم کے باعث انتظامیہ کو اقدامات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو جواب دیا کہ وہ کل رات کھانے کے وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ایک ٹاک شو میں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ صبح طارق روڈ گئے تو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس وقت تو ہم نے کوئی آرڈر بھی جاری نہیں کیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، شاپنگ سینٹر ہفتہ اور اتوار کو کھولنے کا حکم عید کے تناظر میں تھا، عید کے بعد صورتحال کا جائزہ لے کر سماعت کریں گے۔ شاپنگ مال محدود جگہ پر ہوتے ہیں جہاں احتیاط ممکن ہے۔ راجہ بازار، موتی بازار، طارق روڈ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مزید سماعت 8 جون تک ملتوی۔ سپریم کورٹ NDMA کی کارکردگی پر برہم۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آپ صرف شہروں میں کام کر رہے ہیں، دیہات میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں، وہاں لوگ اب بھی دم کروا رہے ہیں۔ آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں، سروسز کے معیار پر ہے۔ NDMA سارا سامان چین سے ایک ہی پارٹی سے منگوا رہا ہے۔ کورونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے کورونا خطرات پر ماہرین کی ٹیم بنانے کی استدعا مسترد، پیش رفت رپورٹ طلب۔ کورونا کے پھیلاؤ کے خطرات میں عید کی تیاری۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عید کی خریداری، بڑے مالز میں ماسک اور احتیاطی تدابیر کی پابندی۔ اسلام آباد میں آنے والوں کو سینیٹائزرز بھی دیے گئے۔ چھوٹے بازاروں میں تمام ہدایات نظر انداز کر دی گئیں۔ شہریوں نے اپنی من پسند اشیاء کی تلاش میں کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی انتظامات کو بھلا دیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے عید الفطر کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن میں 22 سے 27 مئی کی تعطیلات کے دوران مارکیٹس، عوامی مقامات بند رکھنے کا ذکر نہیں۔ 16 مئی کے نوٹیفیکیشن میں عید کی تعطیلات کے دوران عوامی مقامات بند کرنے کا واضح حکم تھا۔ بلوچستان حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن 15 روز کے لیے بڑھا دیا۔ ماہ بعد مسافر ٹرینیں کل سے چلائی جائیں گی۔ DTS ریلوے کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 4 صوبوں سے 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی، جن میں 40% نشستیں خالی رکھی جائیں گی۔ کسی مسافر کے عزیز کو اسٹیشن کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں SOPs کے ساتھ ٹرانسپورٹ کھولنے کے فیصلے کے باوجود انٹرسٹی بس سروس آج بھی معمول پر نہ آ سکی۔ وفاقی کابینہ نے ملک کے بڑے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے کی سفارشات تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ٹیلی میٹرک سسٹم نصب کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی پراس نے کہا ہے کہ شہباز شریف نئے الیکشن کے مطالبے کی بجائے شہزاد اکبر کے سوالوں کے جواب دیں۔ یہ اگر اقتدار میں ہو تو سیاست ٹھیک، جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک۔ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو اور یہ جیت جائیں اور پھر وہی احتساب ہو جو ان کے زمانے میں ہوتا تھا۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام کا مسئلہ کورونا اور کابینہ کا مسئلہ، شہباز شریف کو ECL میں ڈالنا یا نہیں۔
ECL पर नाम आटा चीनी चोरों, मुल्क को IMF के सुपुर्द करने वालों, BRT के 125 अरब के खड्डों, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस के मुजरिमों और इमरान खान साहब का होना चाहिए, जो फॉरेन फंडिंग और 23 खुफिया अकाउंट्स में मफरूर हैं। शिबली साहब शहबाज शरीफ की बजाय अवाम के सब्र के इम्तहान की फिक्र करें। आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 149(4) पूरे सिंध के लिए इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। कई बार ये शोषण छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। सिंध में पीपल्स पार्टी और PTI एक बार फिर आमने सामने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमी नकवी का आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने मुतालबे को शोषा करार दे दिया। कहा आर्टिकल 235 में नहीं 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। हुकूमत का एक बार फिर पार्लियामेंट का इजलास तलब करने का फैसला। समरी आज सदर मुमलिकत को इरसाल की जाएगी। बाबर अवान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन इजलास 5 जून को शाम 4 बजे तलब किया जाएगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर अकरम खान दुरानी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। नैब को खत्म किया जाए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी की नैब को FIA या किसी और इदारे में जम करने की तजवीज़। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन से पहले फैसला किया जाए कि गवर्नेंस का निज़ाम क्या होगा। फ्री और फेयर इलेक्शन होने तक सियासी निज़ाम नहीं चलेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में FP के 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात मच और केच में पेश आए। मच में दहशतगर्दों ने FP की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वाक़े में 6 जवान और केच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। अलीम खान कहते हैं मकामी आटा इंतजामिया आटे की मिलों पर छापे नहीं मारेगी, स्टॉक डिक्लेयर होगा। चेयरमैन आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि कल से आटा मिल्स खुल जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस पर डिजिटल क्लासेस में शरीक हो सकेंगे। सईद गनी का कहना है कि स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का ईद के बाद स्कूल खोलने का मुतालबा। कहा जब मार्केट खुली हैं तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के उलमा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की आड़ में मस्जिद, मदरसा और दीनी मामलात को हदफ बनाया जाना अफसोसनाक है। हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से मजहबी तबकात की किरदार कुशी काबिल मजम्मत है। दीनी अफकार को हदफ बनाने, फिरकावारियत को हवा देने की कोशिशों के संगीन नताइज पर रियासती इदारे हुकूमत तवज्जो दे। मुश्तरका एलामी में उलमा ने आज़म का इजहार किया कि फिरकावारियत को हवा देने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तान ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। अकेडमी 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि अकेडमी में अवामी नुमाइंदगान और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को असर हाजिर के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम सादत अमीन को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जुर्म साबित होने पर ट्रायल कोर्ट ने 7 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
DPO शुमाली वज़ीरिस्तान शफीउल्लाह गंडापुर ने कहा है कि 5 दिन पहले गड़ियों में गैरत के नाम पर कत्ल की गई 2 लड़कियों के खानदान वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पुलिस ने अपनी मुदरियत में मुकदमा दर्ज किया। 2 लड़कियों के मुबैना कातिल की गिरफ्तारी के लिए कराची में छापे मारे जा रहे हैं। कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। सेंट्रल जेल कराची में 212 कैदियों में कोरोना वायरस मुस्बत आ गया। 8 एहलकारों में भी कोरोना की तस्दीक। अब तक किए गए 370 टेस्टों में से 212 मुस्बत आए हैं। जेल हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेल से मजीद 700 कैदियों के नमूने लिए गए हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 958 हो गई। 1840 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 44,672 हो गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 68 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज के शुरा में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुतल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। कोरोना वायरस से दुनिया के 49 लाख से ज्यादा लोग बीमार। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई। ब्राजील 2,57,000 केसेस के साथ मरीजों की तादाद में चौथे नंबर पर आ गया। भारत में मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर। अमेरिका में मरीजों की तादाद 15 लाख से जायद हो गई। मोहलिक वायरस दुनिया के 3,20,000 से जायद लोगों की जिंदगियां ले गया। अमेरिका में सबसे ज्यादा 91,000 और बरतानिया 43,000 हलाकतों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फलस्तीनी इंतजामिया का ईद तातीलात के बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी इदारा FDA और आलमी इदारा सेहत खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना का इलाज नहीं। अमरीकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की मुखालिफत करने पर बरतरफ किया गया। से जायद ममालिक का कोरोना वबा के बहरान की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। आलमी इदारे सेहत की गवर्निंग बॉडी और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में करारदाद पेश। चीन के सदर शी ने कहा कि बीजिंग ने वायरस के बारे में शफाफ तरीके से बर वक्त मालूमात फराहम की। आलमी रद्द-ए-अमल और तजर्बात का जायजा लिया जाए। जो कमी थी उसे दूर किया जाए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। शहीद अफराद में कश्मीरी कमांडर जुनैद सहराई और उनका एक साथी शामिल है। रमजान का सामान लेने जा रहे हैं, टाँसी पड़ जा रहे हैं सामान लेने, तो वहाँ पे ताना मारा लोग है। सारा पैसा गहना गुड़िया सब इसी में रखा हुआ था। कितना पैसा था? 1 लाख रुपए था कैश। पूरा जल गया? पूरा 1 से 1.5 जल गया। भारत
भारत में आरएसएस के गुंडों ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मगरबी बंगाल में चंद मुसलमानों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसलमानों की पूरी बस्ती जला डाली। मुसलमानों के लिए माह रमजान में जरूरी सामान की खरीदारी मुश्किल बना दी। मुसलमानों को देखकर लोग कोरोना कोरोना की आवाजें कसने लगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 32, कोयटा में 31, लाहौर में 37, कराची 37, पेशावर 34, गिलगित में 27, जम्मू 34, श्रीनगर 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रेफलगर स्क्वायर पर 2000 बच्चों के जूते रख दिए। क्रिकेटर उमर अकमल ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। डिसिप्लिनरी पैनल ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। He's got some speed, does very well, the header comes back and the first goal of the game. And Demabai will take it. Oh, that's so tantalising and Havertz makes it, just skittles away from underneath his studs. There's the header. Little flick is for Demabai and it's 4. काय हावर्ट्स के 2 गोल। वेंस लीगा में खाली स्टेडियम में होने वाले मैच में बायर लिवरकूसन ने वर्डर को 4 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। अमेरिका में बेकाबू कार घर के लॉन में जा घुसी। My name is Mangu, Mangu John Mangu, the washing machine. अगर मेरी अम्मी जिंदा होती वो फिल्म देख के बहुत खुश होती। बच्चों को तो अच्छी लगी रही है, लेकिन ये बड़ों को भी अच्छी लगी। आपके पास जितनी भी पावर आ जाए, आप बस अपने आप को चेंज न करें। किंग उधार लेना पड़ेगा इस मुल्क को चलाने के लिए। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दे दिया। My name is Mangu, Mangu John Mangu, the washing machine. कभी कभी ऐसा भी होता है कि खोता ही हिट होता है। सारे वो ख्वाब हैं जो अचीवेबल है। एनिमेशन वाज ग्रेट, कैरेक्टर वाज ग्रेट, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।